ایوان میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے آ کے یہاں سیاست کی ہے، اور سیاست اس سرزمین کی خاطر، یہاں کے پسے ہوئے طبقے کی خاطر، سیاست ایک مخصوص طبقے کی خاطر ابھی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی بڑی تیاری ہو رہی ہے کہ پیراشوٹ پہ ہم لوگوں کو لا کے یہاں پھر اسمبلی میں سجائیں گے۔ یہ پیراشوٹ والا اسمبلی کے سجانا، یہ سلسلہ بند کریں، نہ تو بین الاقوامی طور پہ بہت سے چیز پاکستان کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل بہت افسوسناک عمل اس میں آئے۔ آج جس طریقے سے اس کو بلڈوز کیا گیا کسی کے ٹیلی فون پہ، ایسے ٹیلی فون کو ہم رد کرتے ہیں، اسپیکر کی اس غیر جمہوری عمل کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی 70 سالوں سے پاپولیشن کے نام پہ بلوچستان کے چھوٹے صوبوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی استحصال ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، جناب، اصل مدعا یہ ہے کہ ہم جہاں سے ہمیں استحصال کی بو آ رہی ہے، جہاں سے بلوچستان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جہاں سے بلوچستان کی حقوق غصب ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ قرارداد اسپیکر صاحب نے کس رول کے تحت یہ نکالا ہے؟ وہ نکال نہیں سکتا ہے۔ مورخ جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اسمبلی کے چیمبر میں، ان سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنا یہ قرارداد آپ واپس لے لیں، لیکن اس پہ اس طریقے سے کینچی کے ذریعے وہ کھٹ کرنا، یہ پارلیمانی جمہوری عمل کی خلاف ورزی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اسپیکر صاحب کو ٹیلی فون آیا اور اس نے نکال دیا۔ پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ کو کوئی گارڈ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹیلی فون کے ذریعے اس پارلیمنٹ کو کوئی گارڈ نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی مشترکہ طور پہ اگر آج ہم سارے کھڑے ہو جائیں کہ اس قرارداد کو دوبارہ ہم لائیں گے، تو مقدس تو اسمبلی ہے۔ اسپیکر کو بہت افسوس کی بات ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا اس کے۔ دوسری بات ہماری یہ ہے، دوست باتیں کر کے بس چلے جاتے ہیں، کسی کے موقف کو تو سننا ضروری ہے بلوچستان کی وسیع مفاد میں۔ ہم یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ یا کہیں کوئٹہ کی آبادی کم ہوئی ہے، بڑھنا چاہیے، کم میں زیادہ ہونا چاہیے، حقائق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لیکن اصل مدعا جو یہ ہے، آپس میں جب ہی ہم یہاں بیٹھتے ہیں، وہاں سے زہری صاحب بولنا شروع کرتے ہیں، یہاں سے کوئی دوسرا بولنا شروع کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، جناب، اصل مدعا یہ ہے کہ ہم جہاں سے ہمیں استحصال کی بو آ رہی ہے، جہاں سے بلوچستان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جہاں سے بلوچستان کی حقوق غصب ہو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں اس کو کوئی دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ کہاں سے ہوا؟ کہیں کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو وسائل کی بات کرتے ہیں، وسائل کی تقسیم کی بات کرتے ہیں ہم، کہ ہمارے صوبے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہوتے ہوئے وسائل ان کو کم ہی مل رہے ہیں۔ ہم نہ روڈ بنا سکتے ہیں، نہ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، نہ اپنی تعلیمی اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پنجاب ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے 12 کروڑ اپنی آبادی شو کی ہے۔ متحدہ پاکستان جب ایک تھا، بنگلہ دیش اس ملک کا حصہ تھا، تو اس وقت رقبے کی بنیاد پہ وسائل کی تقسیم ہوئی، کیونکہ بنگالیوں کی آبادی ہی زیادہ تھا۔ اگر پاپولیشن پہ کرتے تو سارے وسائل بنگالی ہی لے جاتے۔ بعد میں جب 25 سال کے بعد بنگلہ دیش بنا، تو نیا ایک طریقہ کار جب ان کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، کراچی میں 3-4 میٹنگیں ان کی ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا ابھی پاپولیشن ہے، ابھی رقبہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، چالاکی کو دیکھیں، پنجاب کی چالاکی کو دیکھیں، ان کے بیوروکریٹ اور جاگیردار اور وہ طاقتور طبقے کی چالاکی کو دیکھیں کہ ابھی پاپولیشن ہے، رقبہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی اگر رقبہ ہوتا تو سارے وسائل بلوچستان لے جاتے۔ پاپولیشن پہ کیا،
70 सालों से पॉपुलेशन के नाम पे बलूचिस्तान के छोटे सूबों को लूटा जा रहा है, उनकी इस्तेसाल हो रही है। 1000 करोड़ सूबे पंजाब में जाता है कि उसकी आबादी बढ़ी। उसके बाद 170-180 नेशनल असेंबली की सीटें पंजाब के ही पास होते हैं और वज़ीर आज़म वहाँ से लिया जाता है और तमाम वसाइल, तमाम वजारत उनके साथ होती हैं, तमाम फैसला वही कहते हैं, हाई कमान वही होते हैं, तो सारे पैसे 1000 अरब वो लेके जाते हैं। इसके बाद कुछ रह नहीं सकती है, बाकी 3 सूबों में आके तकसीम किए जाते हैं। अगर बलूचिस्तान की आबादी इस मर्दशुमारी में 2 करोड़ 10 लाख हुई है तो तकलीफ इसाक डार को क्यों हो रही है, तकलीफ एहसान इकबाल को क्यों हो रही है? तो वो नहीं मान रहे हैं, यही 2 करोड़ 10 को नहीं मान रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ किला अब्दुल्ला की आबादी भी बढ़े, क्वेटे की आबादी बढ़े। एक चीज़ हम नुक्ता नज़र पे हम अपने को मैच्योर और पॉलिटिकल पार्टी बड़ी हम बातें करते हैं, हम इतने अनमैच्योर एक्ट करते हैं जो बलूचिस्तान को नुकसान होता है। मेरे भाई इत्तेफाक के साथ बैठो, पहले ये कहें कि आपके क्या खोया क्या पाया आपने। इस पोल के नीचे बहुत से पानियाँ गई, अभी वक्त आ गया है कम अज़ कम इत्तेफाक के तौर पे सारे पश्तून, बलोच, हज़ारा, सेटलर जितने भी हैं मिल के इस गरीब सूबे के लिए कुछ हिकमत अमलियाँ बनाएं। पश्तूनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बलूचों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम तो दोनों मजलूम हैं, बलूच भी मजलूम इस्तेसाल शुदा, ये पश्तून का भी यही पोजीशन है। तो जुल्म कौन कर रहा है? जो जुल्म कर रहा है कम से कम उसको तो हम निशाने पे लाएं कि कहाँ से ये पानी गलत तरीके से जा रहा है, कहाँ से पानी मैला है, तो उसकी निशानदेही हम करें। हम समझते हैं कि मर्दशुमारी की आबादी अगर हमारी बढ़ गई है, वो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान की आबादी तो बहुत बढ़ गई है। बलूचिस्तान में 81 में मर्दशुमारी हुए, लोगों को पता नहीं था। 58 में मर्दशुमारी हुई, लोग नहीं जानते थे। 97 में मर्दशुमारी हुई, नहीं जानते थे। अब लोगों में शऊर आया। शऊर हमने किसने दिया? हमें शऊर ये पंजाब के इस्तेसाली निज़ाम ने बलूचिस्तान के गरीब लाचार मिस्कीन अवाम को शऊर दिया कि यहाँ वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पे होती है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तमाम इकट्ठे हुए, मुल्ला, अदीब, दानिश्वर, उन्होंने थोड़ा मेहनत की। एक आबादी को किसी हद तक अगर सही तरीके से मर्दशुमारी किया जाए, बलूचिस्तान की आबादी 4 करोड़ होगा। अगर ठीक है पंजाब हमारी आबादी नहीं मानती है, हम पंजाब की आबादी को भी नहीं मानते हैं, तो बैनुल अक़वामी तौर पे जो सालिसी अदालतें हैं या यूनाइटेड नेशन के ज़रिए गैर जानिबदाराना तौर पे पाकिस्तान में आके मर्दशुमारी करें, तो फिर बलूचिस्तान की आबादी उनको पता चलेगा। बलूचिस्तान की बहुत से इलाकों में वो नहीं जानते, नोगो एरिया है, इस पहाड़ में हम नहीं जाते, नोगो एरिया। हमारे लोग खाना बदोश हैं, हम बिल्डिंगों में नहीं रहते हैं, हम आलीशान महलों में नहीं रहते हैं, हम रेवड़ चलाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हम खाना बदोश हैं और हर पहाड़ के दामन में हज़ारों लाखों लोग लेते हैं और इनकी गिनती कभी नहीं हुई है। अगर इस दफ़ा हुई है वो कहते हैं कि आबादी बढ़ गई है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ANP से और जमीयत उलमा इस्लाम से, जहाँ पश्तून बेल्ट में रहते हैं, हम बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक जान एक कालिब हो के बलूचिस्तान की वसीतर मफाद पे लेके आगे चीज़ों को आगे जाएं। आपस की झगड़ा बहुत हुई, ये 70 सालों में आपस की झगड़ा बहुत हुई, बहुत से नंबर लोगों ने अपने बढ़ाए, कभी घटाए, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। बलूचिस्तान की निजात की एक ही राह है, इत्तेफाक और बलूचिस्तान की आवाम की वसीतर मफाद को हम लेके आगे जाएं। इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ कहीं बलूचिस्तान की आबादी दोस्त महसूस करते हैं वहाँ दोबारा मर्दशुमारी की जाए। जहाँ कहीं साथी मुतमईन हैं अपनी जगह पे, उनको कम अज़ कम तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाए। मुत्तफ़िका तौर पे इस करारदाद को आज जिस तरीके से इसको बुलडोज किया गया, किसी के टेलीफोन पे, ऐसे टेलीफोन को हम रद्द करते हैं। स्पीकर की इस गैर जमहूरी अमल को हम रद्द करते हैं। हम समझते हैं सबसे बड़ी ऐवान में बैठे हुए जिन्होंने आके यहाँ सियासत की है और सियासत इस सरजमीन की खातिर, यहाँ के पिसे हुए तबके की खातिर,
सियासत एक मखसूस तबके की खातिर अभी यहाँ नहीं हो सकती है। आने वाले वक्त में इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में भी बड़ी तैयारी हो रही है कि पैराशूट पे हम लोगों को लाके यहाँ फिर असम्बली में सजाएंगे। ये पैराशूट वाला असम्बली के सजाना, ये सिलसिला बंद करें। ना तो बैन अल-अक़वामी तौर पे बहुत से चीज़ पाकिस्तान को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल बहुत अफसोसनाक अमल इसमें आए कि जनाब यहाँ तो सिर्फ दिखाने के लिए जमहूरियत है। इस मुल्क की बका, जनाब स्पीकर साहब मुझे सुने, साफ़ी मुझे सुने, इस मुल्क की बका जमहूरियत में है और जो जमहूरी पार्टी इस वक्त यहाँ एक्ट कर रहे हैं उनको आज़ादाना छोड़ें। जो लोग उनको वोट करेंगे उस असम्बली के हकदार वही है। ये पैराशूट पे आने वाले नहीं हैं कि जहाँ कहीं से जी चाहे हम लाइक और डिसलाइक पे असम्बली के फ्लोर पे लोगों को आके यहाँ बिठाएं। इसलिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अवामी की मरकज़ी सदर की हैसियत से हम चाहते हैं पुरम बकाए बाहमी एहतराम के साथ लोगों की मैंडेट का एहतराम किया जाए और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों का जो मैंडेट है उनका एहतराम किया जाए। आने वाले वक्त में सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाएं, उन लोगों का रास्ता रोकें जो ठप्पा मारी करके यहाँ अंगूठा छाप लोगों को लेके आते हैं। उनका रास्ता सबका फ़र्ज होता है कि उनका रास्ता रोकें और इसमें इत्तेफाक यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू। शुक्रिया मोहतरमा बुशारीन।